Hello everyone, welcome me back in the topic comparing quantities. It's the last topic before your PT1. Other school students may have different topics, so for them I'll be taking separately, not to worry. But last topic before your syllabus, that is eighth one, comparing quantities. In this topic, basically we are going to focus more on percentage, as we can see here on the board. So today we are basically going to understand the base of the percentage only, nothing else, and you will be completing these many questions. I think 11 questions you have today to complete. So you'll be completing these many questions, and how to solve these questions I'll be teaching you now. Okay, if you understand these questions, then your almost everything is done. The topic will be done. Only you have to understand the question and solve it. So today we are going to complete the base of percentage. Okay, the first thing one should understand, what do you mean by percentage, and why exactly one should find out percentage. How is that going to help you? Now imagine if I tell you this simple example that a child A got 30 marks and child B got 60 marks. And if I ask you which one is better, which one is studying hard, child A is studying hard or child B is studying hard, can you able to tell me? Of course, one might say that child B has studied hard, and one may say that child A is not studying properly. But let me tell you, child A has received 30 marks out of 50, and child B has received 60 marks out of 100. Now, do you think that the child A is better or B is better here in this case? Let me tell you, both are equal. Both are equal. But how to understand that? Okay, whether they are equal or whether they are not equal. See, when I told you only the marks, that time it was just impossible to identify that who is better, because the total marks were not given. When I gave you the total marks, that time also it was bit confusing that the child A's marks are better or child B's marks are better. Right? Now, if I give you the second example, child P has got 70% marks and child Q has got 65% mark. So over here, who is better? Surely you can say directly P is better, because I know that P has got 70 marks out of 100 and Q has got 65 marks out of 100, and that is why P is better than Q. That's very clear. So the percentage gives you a better understanding of the quantities, better meaning of the given quantities. And rather, it should not be given that out of how many it is. Nothing should be given. Just one number can explain everything, isn't it? And that's why we need percentage. This is the reason we need percentage. I don't say that the P has given 100 mark test, Q also has given 100 mark test. However, the test was conducted, whatever the mark the test was conducted, the percentage what they have scored is 70% and 65%. Right? Irrespective of what they have given the exam and how many marks the exam was given, isn't it? So this is the reason percentage is, or it becomes very important part of mathematical calculations. Okay, so that's the reason it is easy to compare. Therefore, this particular concept is involved in comparing quantities. I hope you understood why the comparing quantities topic may percentage is there as a main focus. The reason is this. So it becomes easy when it comes to percentage. It becomes easy to compare the quantities. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है. बहुत सिंपल सी बात है. इफ आई से दैट आई वांट टू रिमूव 5% ऑफ 20, मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब देखते हैं. 5% का मतलब होता है 5/100. रिमेंबर, परसेंट का मतलब होता है दैट अपॉन 100. 5% ऑफ मतलब इनटू 20. हो गया. तो 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, इट इज 1. So 5% of 20 is 1, right?
5% of 20 is 1. Second one, what will be 95% of 20 then? चलो देखते हैं. As I said, 95 upon 100 into 20, right? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है. 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 9 जा 45. So 90. So 95% of 20 is 19. You can understand, देखो 5% is 1, 95% is remaining, isn't it? Total is 100%. तो 5% यहाँ पे है, तो बचे हुए कितने हैं? 90% है, 95% है. तो 1 is here, 19 is here, 19 plus 1 कितना हो जाता है? 20. देखो, है ना? I'm just teaching you how to remove the percentage. That's it, nothing else. बाकी सारी चीज़ें मैं बस as a interesting thing I'm telling you. Okay? What if I ask you 12% of 500? तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. 12% का मतलब क्या होता है? 12 by 100 ऑफ मतलब इंटू 500. ये आ गया 500. 0 0 गेट कैंसिल, 12 5 60. तो 60 इज 12% ऑफ 500. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल, राइट? ईजी है ना? कभी कभी ऐसे हो सकता है पॉसिबली कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्वेश्चन है, फोर्थ वन. 33% ऑफ 100, और ये दिस वुड बी बिट इजी. 33% ऑफ 80 अगर मैंने लिया, तो इजंट इट दिस वुड बी 33 अपॉन 100 इंटू 80. 0 0 गेट कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10. So this is going to be 33 into 4 divided by 5. Don't you think it is not properly divisible? But it's okay. I will find out the answer. 4 3s are 12. If things are not properly divisible, पूरा multiply करो फिर divide करो. 4 3s are 12, 1 carry. 4 3s are 12 plus 1, 13 divided by 5. 5 2s are 10, है ना? 132 properly divide करते हैं. 132 divided by 5. 5 2s are 10, 3 left, 2, 5 6 are 30, 2 left, decimal 0 बढ़ दिया, 5 4 are 20. तो it will be 26.4. ठीक है, 33% ऑफ 80 इज 26.4. तो ये पॉसिबल है कि आपको आंसर डेसिबल में आ जाए, लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन. बराबर है ना? तो ऑफ कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया आपको. अगर मैंने ऐसे पूछा 105% ऑफ मे बी 600, तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे 105%? आप बोलोगे 100 के आगे तो नहीं होता है. रिमेंबर दैट इट इज़ नथिंग अबाउट 100 के आगे नहीं होता. 200% होता है, 300% भी होता है. सो यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर दैट. जैसा है वही फॉलो करो. 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600. तो दिस गेट कैंसिल एंड आई कैन ईजिली गेट द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 105 एंड 6. दैट्स इट, राइट? क्लियर? तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ गया. दूसरी चीज़, if I tell you that if I scored 20 out of 30, what will be my percentage? Find percentage. मुझे 20 out of 30 मिला है, तो परसेंटेज फाइंड करना है. कैसे फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज? बहुत सिंपल सी बात है. 20 out of 30 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब इसको बोलते हैं रेशो. इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रेशो. रेशन हो गया, इसको बोलते हैं रेशो. पहले रेशो में कन्वर्ट करो, जो भी दिया है उसको रेशो में कन्वर्ट करो. किया कन्वर्ट? देखो 20 अपॉन 30, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका परसेंटेज मिल जाएगा. दैट्स इट. अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपल सी बात है, याद रखो. अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो रेशो को, जो भी है रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इसका प्रैक्टिस अभी करने वाले हम लोग, डोंट वरी. 0 0 गेट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऊपर है 200 डिवाइडेड बाय 3. कितना होगा देखते हैं. 2 6 18, 2 लेफ्ट, 2 6 18.66%. ये रहा आपका आंसर. सो 20 आउट ऑफ 30 जो है वो 66.66% है. ठीक है, कुछ नहीं, रेशो निकाल के बस मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. चलो और क्वेश्चन देखते हैं. इफ द ट्यूशन फी
fees are reduced by rupees 5,000 out of मतलब 20,000. So how much percent the fee is reduced if I ask you? कितना रिड्यूस हुआ है? 5,000. तो रेशो लो, 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100. दैट्स इट. तो 0 0 गेट कैंसिल, ये 2 0 और ये भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 7. तो कितना परसेंट कम हो गया? 25% कम हो गया. ओके, राइट? इज दिस क्लियर? गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. तो आज बस इतना ही आपको करना है कंप्लीट. ये देखो, आपको टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये मुझे आपको सेंड करने पड़ेंगे. ओके, सो दैट आई वुड सी दैट यू आर कैलकुलेटिंग. देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस. तो अगर ये ठीक से आना चाहिए, ये और वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो ये दोनों का रिवीजन हम लोग लेंगे. लीनियर इक्वेशन का भी मुझे पता है आपको वर्ड प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट जाते होंगे, तो हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं उसके ऊपर. डोंट वरी, डोंट हैव टू वरी. एक बार ये टॉपिक खत्म हो गया तो हम लोग लीनियर इक्वेशन रिवीजन के टाइम पहले लीनियर इक्वेशन लेंगे. डोंट वरी. तो लीनियर इक्वेशन से शुरू करेंगे, डोंट वरी. बट आपको करना क्या है, आपको ये समझ में आ गया क्या? अगर आपको ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज ठीक से आना है तो फॉर श्योर you have to properly practice and individually you have to practice, independently you have to practice. तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी ये टॉपिक आपको आएगा. तो ये है आपके 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट करोगे ना आप लोग, तो आपका पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन. बाकी बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन. दैट्स इट. वही बचेगा, वो हम लोग करने वाले हैं. डोंट वरी, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे. चलो हम लोग देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है. फाइंड 25% ऑफ 116. सो 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब इंटू 116 कर दोगे आप लोग इजीली. ये चारों के चारों क्वेश्चन बस परसेंटेज में करना है. दैट्स इट. 9th क्वेश्चन देखो, 9th वन. फाइंड परसेंटेज ऑफ 20 आउट ऑफ 30. तो अभी अभी किया था 20, रेशो लो इंटू 100 करो. परसेंटेज निकालना है तो रेशो इंटू 100, रेशो इंटू 100. इफ आई हैव रिड्यूस 3 kg वेट फ्रॉम 80, मतलब 3/80 इंटू 100. 80 में से 3 रिड्यूस किया तो 3 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 परसेंटेज हो गया. रवि हैज स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 15. सो 10/15 इंटू 100, राइट? दिस विल गिव यू द कंप्लीट आइडिया अबाउट द परसेंटेज. हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th वन, 8th वन? ये थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं ना. तो एक क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करते हैं. What is 20% of x is 80? देखते हैं क्या है ये. देखो, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ. 20% ऑफ x is 80 इज मीन्स इक्वल टू, या रहा 80. 20% आपको पता है 20/100 इंटू x. देखो, सिंपली एक इक्वेशन बना देना है. आपको x फाइंड करना है ना, तो इसको वहाँ पे भेज दो, 20 को भी उधर भेज दो. x विल बी इक्वल टू 80 इंटू जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा एंड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा. उल्टा होता है, बराबर ना? फ्रैक्शन जो होता है वो उल्टा हो जाता है. तो 100/20. ठीक है, तो 0 0 गेट कैंसिल. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 8 ज़ा 40. ये रहा 400. तो x विल बी इक्वल टू 400. परसेंट तो नहीं होगा, ये परसेंटेज नहीं है. परसेंट तभी होता है जब हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तभी वो परसेंट में कन्वर्ट होगा. बाकी अदर केस में ये कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होता, ये परसेंटेज नहीं होता है. ओके, सो व्हाट इज 20% ऑफ x इज 80? तो x क्या होगा? 400 होगा. मतलब 20% ऑफ 400 इज 80. इसका मतलब क्या होता है? 20% ऑफ 400 इज 80. करके देखो. 400 20/100 इंटू 400 इज इट इक्वल टू 80? चेक कर लो. 0 0 गेट कैंसिल. यस, 80 है. बराबर ना? सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है. इक्वेशन का यूज़ करना है. ठीक है, 20% ऑफ x इज 80. तो और कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं. ये 55% ऑफ x इज 605. तो 55% ऑफ x, चलो 55% ऑफ x इज 605. मतलब क्या करना है? देखो, 55/100 ऑफ x इज 605. कितना सिंपल है देखो.
तो व्हाट इज x विल बी इक्वल टू 605 इंटू 100 अपॉन 55. ठीक है, डिवाइड तो करना पड़ेगा, 5 से डिविजिबल है, 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा, ये 5 से डिविजिबल है क्या है, तो सही 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 11 से डिविजिबल है, देखो 11 का स्क्वायर है ना, याद आया क्या 11 का स्क्वायर, तो ये 11 ज़ा हो गया, तो ये आएगा 1100 इज नथिंग बट माई एक्स वैल्यू. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. तो कर दोगे. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू सी यू ऑल पीपल कंप्लीटिंग दिस पार्ट. तो आपका टॉपिक 50% खत्म हो जाएगा. देखो मैं परसेंट यूज कर रहा हूँ, है ना. तो दैट्स द कंपेयरिंग क्वांटिटीज. सो लेट अस मेक दिस टॉपिक एज इजी एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो.